Hello students, good morning and welcomes in my YouTube channel. Today we start topic types of unit cell. On the basis of arrangement of constituent particles at different positions of unit cells is classified into following two ways. Unit cell divided into two groups. First, primitive unit cell or another name of simple unit cell. Therefore, in short form is also known as SCC. These are a simple cubic unit cell. It means all unit cell considered in the form of cube-like structure. Therefore, word use cubic, simple cubic unit cell. Second, centered cubic unit cell. But centered cubic unit cell again categorized in following three another unit cells called as body centered cubic unit cell, therefore called as BCC. And second, face centered cubic unit cell, FCC. And third, end centered cubic unit cell, it means ECC. Now question arises in mind, what is the basic difference between simple unit cell and centered unit cell? Different is based on arrangement of constituent particles in a unit cell. In the simple or primitive unit cell, constituent particles present only corners of the unit cell. It means those unit cell arrangement of constituent particle have only corner site are called as simple or primitive unit cell. It means SCC. This one. This is called SCC. Understood? And what is centered cubic unit cell? When constituent particle present except present corners to the faces, to the edges and centers are called as centered cubic unit cell. It means इस टाइप की यूनिट सेल में क्या होता है बच्चों, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर ही प्रेजेंट नहीं होते। कॉर्नर के अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर फेस की, हम बात करेंगे यहाँ पर एज की, हम बात करेंगे यहाँ सेंटर की। तो अगर यहाँ पर कॉर्नर के अलावा फेस पर, सेंटर पर, एज पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे आप क्या कहेंगे, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अंडरस्टूड?
अब इसको हमने 3 टाइप से डिवाइड किया है, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। When constituent particle present at the center of unit cell except corners, means देखिए आप, ये आपके कॉर्नर्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये तो एससीसी है। तो एक्सेप्ट कॉर्नर्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट at the center of the unit cell is called as BCC, body centered cubic unit cell. Now face centered cubic unit cell, in this type except corners constituent particles present at the faces. ओके देखिए बच्चों, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है ही सी, लेकिन आपको पता है टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अबोव एंड बिलो, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एफसीसी। ओके, नाउ ईसीसी। In this type, except corner constituent particles one opposite end of facet. It means suppose this one unit cell, arrangement of constituent particles at corners and one end of वन अपोजिट एंड ऑफ फेसेज। आप फेस का कोई भी एक अपोजिट एंड ले लीजिए और उस पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को प्लेस कर देंगे, तो आप अब इसको किस नाम से जानेंगे? ईसीसी के नाम से आप जानेंगे। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में अगर शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में हम बोले तो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। अंडरस्टूड? मुझे लगता है आपको जरूर ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे इन क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल देखेंगे। Number of atoms in cubic unit cell. We know that cubic unit cell are classified in following 4 categories: SCC, BCC, FCC and ECC. Number of atoms calculated by following formula: total number of constituent particles into contribution of particles. Applied this type formula and calculated number of atoms. It denoted by Z. कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा इसको हम 1 by 1 समझते हैं। You know very well SCC. In the SCC unit cell, constituent particles present only corners, only
corners. This one SCC. Then number of atoms equal to total number of constituent particles. कहाँ प्रेजेंट है? ओनली कॉर्नर्स पर, तो 8 इंटू, अब आपको मैंने कल लास्ट वीडियो में ये समझाया था, आपके पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, तो उसको कवर्स करने के लिए हाउ मेनी यूनिट सेल रिक्वायर्ड? 8। तो एक यूनिट सेल का, एक सिंगल यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो आप इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स बताएंगे तो क्या बताएंगे? 1/8। पार्टिकल्स की जगह पर अपन यूनिट सेल ले लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1/8। तो अपने पास नंबर ऑफ एटम कितना हो गया SCC के लिए? 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम सेकंड की बात करते हैं, ऐसे ही BCC की बात करते हैं। ओके, अब BCC की स्ट्रक्चर में बच्चों क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्सेप्ट कॉर्नर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, ऐसा। अब आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, Z निकालेंगे, तो आप कॉर्नर्स की काउंटिंग करेंगे पहले। तो कॉर्नर्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने? 8, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 प्लस। अब इसके बाद में सेंटर की बात करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर में कितना है? 1, और वो हाउ मेनी यूनिट सेल से कवर है? एक सिंगल से, तो 1/1। तो रिजल्ट अपना क्या आ गया? 1 + 1 = 2। तो BCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? ओनली 2। अब आप बात करते हैं FCC के लिए। FCC में बच्चों देखिए क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एक्सेप्ट कॉर्नर प्रेजेंट ऑल 6 फेसेस ऑफ यूनिट सेल, अप डाउन लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। ओके, तो Z कैसे कैलकुलेट करेंगे? Z = पहले कॉर्नर का कैलकुलेट करते हैं, तो 8 × 1/8 प्लस। अब हम फेसेस की बात करेंगे। हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस एंड 6 ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और मैंने आपको कल बताया था कि फेस पर अगर कोई पार्टिकल्स है तो उसको कवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। ओके, जैसे ये फेस है, इस पर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा हुआ है तो इसको मुझे कवर करना है, तो ये अनोदर और ये फेस चाहिए, और इससे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कवर हो गया, तो हाफ कंट्रीब्यूशन इसका है, हाफ कंट्रीब्यूशन इसका है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 6 × हाफ। तो रिजल्ट क्या आ गया? 1 + 3 = 4। ये FCC के लिए आ गया। नाउ फॉर ECC। ECC में क्या होता है बच्चों? ECC में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्सेप्ट कॉर्नर प्लेस्ड एट ए अपोजिट एंड ऑफ फेस, मीन्स लाइक दैट, वन अपोजिट एंड ऑफ फेस। तो Z कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉर्नर्स के लिए 8 × 1/8 प्लस। अब फेस पर पार्टिकल ओनली कितने? 2, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया? 1 + 1 = 2। लेकिन मोस्टली न्यूमेरिकल्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? SCC, BCC, FCC, इन्हीं पर ही डिपेंड न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अटेंशन आपको किस न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है? SCC, BCC, FCC पे ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ Z की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, आपको डायरेक्ट Z की वैल्यू यहीं से पता करनी है। याद कैसे रखना है? शॉर्ट एंड स्वीट पैटर्न आपको बता देता हूँ, जिससे आप इसको आप लर्न कर सके, याद कर सके।
देखिए बच्चों, याद रखने का सबसे अच्छा पैटर्न है, मैंने कहा ये 3 टाइप्स की यूनिट सेल है, बीसीसी की, उसकी क्यूबिक यूनिट सेल की, इन तीनों को याद रखना, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। और इनके लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। अंडरस्टूड? तो जेड की वैल्यू आप इजी गोइंग में लर्न कर सकते हैं, फॉर एससीसी, फॉर बीसीसी, फॉर एफसीसी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, हमने अभी टॉपिक देखा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम्स। अब बच्चों इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, थोड़ा सा उस पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। चलिए एक न्यूमेरिकल हम समझते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे। इफ 2 एलिमेंट्स x and y forms ionic compound, element x placed corners of lattice and element y placed at the center of lattice, then calculates its molecular formula of compound। ओके, देखिए बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि जैसे एक यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में x तो प्लस्ड है, x तो प्लस्ड है कॉर्नर्स पर, यहां पर x प्लस्ड एटम, और y प्लस्ड है सेंटर पे, ये यहां पर प्लस्ड है। एक तरीके से बीसीसी का क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में एक्सप्लेन करता हूँ, जैसा इन्होंने कहा वैसा ही हम बात करते हैं। हमने कहा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक x है और एक आपके पास y है। x प्लस्ड कहां पर है, एट कॉर्नर्स, y प्लस्ड कहां है, एट सेंटर्स। ओके, ये बात पूछी गई है। अब कॉर्नर्स पर टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होते हैं, 8, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, 1। सेम एज एट सेंटर, सेंटर के नंबर कितने होते हैं, 1, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। तो हमारे पास x और y एलिमेंट है, वो 1:1 के रेशो में प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल टू x1 y1, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा xy। ओके, अगर हम बच्चों एक ऐसा कैसे दूसरा न्यूमेरिकल देखें, तो दूसरा न्यूमेरिकल बहुत सिंपल कैटेगरी का होगा। सेम कैटेगरी हमने x और y की जगह पर हम कर देते हैं a एंड b। ओके, और एलिमेंट a प्लस्ड कॉर्नर्स ऑफ लैटिस एंड एलिमेंट b प्लेस्ड एट द faces of lattice, then calculate its molecular formula of compound। अब क्वेश्चन इस टाइप से हो गया, ये टाइप फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट के। बेसिकली न्यूमेरिकल यहाँ से आरबीएससी में बहुत कम आते हैं, अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल जरूर करेंगे। अब हमारे पास एलिमेंट्स है,
देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अब कहाँ है, कॉर्नर्स के अलावा ये फेसेस पर है। एलिमेंट्स के नेम चेंज हो गए, एलिमेंट्स हमारे पास ए और बी हो गया। ए तो अभी भी कॉर्नर्स पर है, लेकिन बी कहाँ पर है, एट फेसेस है, फेसेस पर है। और टोटल फेस के नंबर कितने होते हैं, 6, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो ये कितना हो गया, 3। इट मीन्स यहाँ पर जो ए है और बी है वो 1:3 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो रिजल्ट क्या जाएगा, A1B3, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, AB3 हो गया। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दे, हम इस क्वेश्चन में ये चेंज कर दे, यहां से थोड़ा सा चेंज कर दे, इफ one constituent particles of capital A missing at the corners, then what will be molecular formula of compound। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन वेरिएशन अगर अपन कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, अब कॉर्नर क्वेश्चन सेम है, हमने क्या किया, कॉर्नर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को मिस कर दिया, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 की जगह पर कितने रह गए, 7 रह गए। तो हमारे पास 1 रेशो नहीं आया, 7:8, 7/8:3 का रेशो आया। तो ये रेशो अगर आप इसको सिंपली वे में एक्सप्लेन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7:24, 3×8=24। अब आपके पास ए तो 7 हो गया और बी कितना हो गया, 24। तो अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा, A7B24। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चों पूछे जाते हैं कंपटीशन में, बोर्ड में अभी तक नहीं आए हैं, आएंगे तो ये टाइप फर्स्ट का न्यूमेरिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अंडरस्टूड बच्चों, हम अगले वीडियो में आपके लिए जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।